Yes, our today's topic is over here. Buy back of equity shares. Now there is no any need to memorize the things, remember the things. The word is very explanatory, self-explanatory. And second thing, a very logical things. See what is mean by buyback. Buy is purchase, back means return. So when we see this purchase plus return, return purchase. Return purchase. What return purchase? What are samosa? No. Return purchase of what? Equity. So in very simple language, in a line, what is buyback? Buyback means return purchase of its own equity share. This system is known as buyback of equity shares. Now, again there will be a question, why it is known as buyback of equity share? Why not anything else? Listen. The word back is used over here because we are taking return back. Now you are saying that sir issue की बात कब हुई? Issue की बात बहुत पहले हो चुकी है इसमें. I mean कंपनी में. और आपने भी ऑलरेडी एसवाई में पढ़ा है इश्यू ऑफ शेयर्स. When company start, company try to raise fund from the various sources, and one of the major source that is equity share. At that time, company issue the shares in the market. Assume that if a company is going to start, and assume that this is equity share, it is not a physical form, but just assume that it is equity share and company issue shares in the market and get money from there. वहां से मार्केट से कंपनी को पैसा मिलता है और कंपनी मार्केट के अंदर शेयर इशू करती है. अब मान लीजिए कंपनी को 10 years हो गया, 20 years, वट एवर देयर, and company want to buy back. And now again your question will be here, why? What are the objective behind it? We'll discuss it later. What are the objective over there? So when the company want to purchase it, means company will purchase its share again and will return back their money. That means whose? Equity shareholders money. Company will return their money and company will take back the share. Which share? Which were issued at the time of starting of the company. At that time company issued the share and now they are taking back. Therefore this system is known as buy back of equity shares. Now again we can also see in the material, study material will provide you. Now the question is here, what are the objective behind it? There is various objectives. I'll explain over here also and in material also. First of all, when you talk about buyback of share, behind it objective is here to increase the earning as well as intrinsic value. See, I am using two words, intrinsic value and earning per share. Both will increase. How? I am giving an example. Assume that there is 4 brothers at home. 4 brothers. And they have a field. उनके पास एक खेती है जहां पे उनको 4 lakhs का पर ईयर, 4 lakhs का पर ईयर उनको क्या होता है, आउटपुट होता है, रिटर्न मिलता है, प्रॉफिट मिलता है. जस्ट इमेजिन एंड अज्यूम दैट कि इन 4 में से अगर 2 भाइयों को किसी भी तरीके से रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, ले देकर कुछ, तो कितने भाई बचेंगे? 2. और जब 4 lakhs का प्रॉफिट होगा, पहले जब यहाँ पे 4 भाई थे 4 lakhs होता था प्रॉफिट, तो पर पर्सन कितना मिलता था? 1 lakhs. बट जब वहां पे खाली 2 भाई रह जाएंगे, 2 को रिमूव कर दिया गया कैसे भी करके, तो पर पर्सन कितना मिलेगा? 2 lakhs. mean their earning will increase. Similarly in the company also, if there is 100 shares, assume that there is not this less number of shares, but just imagine that there is 100 shares and number of shareholders is also 100. शेयर्स 10 है और वहां पे कितने शेयर होल्डर्स हैं? 10 शेयर होल्डर्स भी, सॉरी 100 शेयर्स है, 100 शेयर्स है और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी कितने हैं? 100 है. तो एक शेयर होल्डर को अगर कंपनी के पीछे कितना होगा? 1 रुपये होगा. अज्यूम दैट कि किसी तरीके से नंबर ऑफ शेयर्स अगर रिटर्न बैक ले लिया जाए और किसी भी तरीके से अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर अगर कम कर दिया जाए, 10 कर दिया जाए, तो पर शेयर होल्डर कितना होगा?
₹10 होगा। मतलब पहले अगर कंपनी अगर 100 रुपये कमाती थी, अगर कंपनी के पास 100 मेंबर होते थे तो एक मेंबर को कितना मिलता था ₹1। लेकिन अब अगर कंपनी 100 रुपये कमाएगी और किसी भी तरीके से नंबर को कम करके अगर 10 कर दिया जाए तो एक शेयर होल्डर के पीछे कितना बचेगा, अब ₹10 बचेगा। मतलब एक शेयर होल्डर्स का अर्निंग क्या होगा, पर शेयर होल्डर अर्निंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेम उसी तरीके जैसे आपने एक दुकान चालू किया, वहाँ पे 4 पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स को आपने किसी भी तरीके से अगर इधर उधर कर दिया तो अब आपको हर पार्टनर को प्रॉफिट जो है ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्टिव आपका हो जाता है प्रॉफिट बढ़ाना, पर शेयर होल्डर्स प्रॉफिट बढ़ाना। और खाली एक अकेला रीज़न नहीं है, सम टाइम इट हैपेंस दैट कि कंपनी कभी कभार एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा शेयर इशू कर देती है, ज़रूरत से ज़्यादा, तो वापस रिटर्न बैक लेती है। उसके अलावा सम टाइम इट हैपन दैट कि कंपनी को इस बात का खतरा, इस बात का डर रहा होता है कि कोई कॉम्पिटिटर उसकी कंपनी को टेक ओवर कर लेगा, तो कंपनी बाई बैक कर लेती है। वो कैसे क्या, मैं आपको स्टडी मटेरियल में डिटेल में डिस्कशन करूँगा। वो अपार्ट फ्रॉम दैट सम टाइम इट हैपन्स दैट कि कभी कभी कंपनी में क्या होता है कि कंपनी को ऐसा महसूस होता है, कंपनी को ऐसा फील होता है कि भाई हमारे पास एक्सेस फंड पड़ा हुआ है, तो उस पैसे का क्या किया जाए, चलो अपना ही शेयर खरीद लिया जाए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रमोटर्स परसेंटेज इंक्रीज व्हेन कंपनी बाय बैक द शेयर, प्रमोटर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ऑल्सो इंक्रीज। ओके, लेट्स कम ऑन, थोड़ा अब एक बार हम लोग अपना स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं दैट व्हाट इज buyback of shares. You can see here whatever I have already explained. Purchase back means repurchase, means when a company purchase back its equity shares from its existing shareholder. What is existing shareholders? Means we have issued it earlier and now we are going to purchase. You can see over here, to whom it was sold earlier is known as buyback of equity share. See, objective already मैंने डिस्कस कर लिया। पहला, टू इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर। अज्यूम दैट पहले 100 शेयर होल्डर से और कंपनी ₹100 कमाती, तो 100 डिवाइड बाई 100, एक शेयर होल्डर कितना बचता था ₹1। अगर मान लीजिए हमने कैसे भी करके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम कर दिया, अज्यूम दैट हमने नंबर ऑफ शेयर्स 10 कर दिया, हालांकि इतना कम कर नहीं सकते, बट अज्यूम दैट कि मान लीजिए ₹100 कंपनी अब कमा रही है और 100 की बजाय अब 10 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो गए, तो एक शेयर होल्डर कितना बचेगा, ₹10। मतलब अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा। रिड्यूस एक्सेस शेयर कैपिटल, एक्सेस शेयर कैपिटल क्या होगा, कम हो जाएगा। हाउ, एग्जाम्पल मान लीजिए कभी कभी कंपनी क्या होता है, ज़्यादा शेयर इशू कर देती है, ज़रूरत से ज़्यादा। अब ज़रूरत से ज़्यादा कंपनी ने शेयर इशू कर लिया तो क्या करेगी कंपनी, उसको बाई बैक कर देगी। एग्जांपल मैं बोलता हूँ, जैसे आप अपने घर पे रोटी बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चावल या आपने आटा डाल दिया, तो आप उसको क्या करते हो, रिटर्न निकाल के डब्बे में रख देते हो ना। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, ज़रूरत से ज़्यादा मार्केट के अंदर शेयर इशू कर दिया, बाद में पता चला तो बाद में उसको क्या करते हैं, बाई बैक कर लेते हैं। नेक्स्ट, टू यूज़ सरप्लस कैश, अगर हमारे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है तो कहीं और इन्वेस्ट करने के बजाय हम अपने शेयर में इन्वेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर्स। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए एक घर में 4 भाई हैं, तो प्रॉपर्टी के ऊपर कितना अधिकार है सबका, 25% हर एक का है। लेकिन मान लीजिए किसी भी तरीके से अगर 2 भाइयों को हटा दिया जाए तो हर एक का अधिकार कितना हो जाएगा, 50%। उसी तरीके से अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अगर कम कर दिया जाए बाई बैक करके, तो जो प्रेजेंट शेयर होल्डर्स या प्रमोटर बचेंगे उनका कंपनी के अंदर शेयर्स अपने आप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट टेक ओवर अटेम्प्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर। अभी मान लीजिए हमें पता है कि हमारे किसी कॉम्पिटिटर की नीयत ख़राब है, वो हमारी कंपनी, हमारे बिजनेस को हड़पना चाहता है, तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पास अपने कंपनी का मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द शेयर बाई बैक कर लेंगे, बाई बैक करके रख लेंगे। अब कॉम्पिटिटर कितना भी मार्केट के अंदर से हमारा शेयर खरीद लेगा, लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ द शेयर हमारे पास है तो कभी भी हमारी कंपनी को टेक ओवर नहीं कर पाएगा। सिंपल बात है, अगर उसके हाथ में 51% शेयर चले गए तो कंपनी को टेक ओवर कर सकता है। इन दैट कंडीशन फिर हम क्या हो जाएंगे, फिर हम तकलीफ़ में आ जाएंगे। अब उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले बाई बैक कर लेंगे। अब जब मार्केट में 51% शेयर रहेगा ही नहीं तो वो उसको टेक ओवर कैसे कर पाएगा, तो हमें टेक ओवर से बचने के लिए हम ऐसा करते हैं। नेक्स्ट, टू इफ़ेक्ट फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग और कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट और अमालगमेशन। सिंपल बात है, कई सारी चीज़ें हैं, कैपिटल रिस्ट्रक्चर जिसको आप कैपिटल रिकन्स्ट्रक्शन भी बोलते हैं, या उसके बाद में एक आप और चैप्टर पढ़ेंगे अमालगमेशन, 2 सेपरेट चैप्टर जिसके बारे में आप ऑलरेडी डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। बट मैं एक सिंपल सेंटेंस में आपको यहाँ पे बता दूँ, कभी कभी क्या होता है जब कंपनी की हालत ज़्यादा ख़राब होती है तो कंपनी अपना कैपिटल इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन करने लगती है। इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन मतलब शेयर का वैल्यू कम करना, क्रेडिटर्स का वैल्यू कम कर देना, बैंक का लोन कम करवा लेना, जिसको हम शेयर होल्डिंग के लैंग्वेज में आपके डब्बा बाज़ार में जिसको हम हेयर कट बोलते हैं,
ऐसा करवा लेते हैं। सम टाइम इट हैपन दैट कि पूरा का पूरा कंपोजिशन चेंज होता है। बैंक का 100 रुपीज़ अगर देना तो उसका 65% भी हेयर कट हो जाता है, जिसमें हमें खाली 35% देना पड़ता है। आप बोलेंगे सर बैंक पागल है क्या, ऐसा करता है? करता है, करना पड़ता है। रीज़न इज देयर, अगर कंपनी की हालत ऑलरेडी ख़राब है, कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, बर्बाद हो गई, एक भी पैसा नहीं मिलेगा, उससे बढ़िया कुछ तो मिल रहा है ना। तो क्या होता है, ये सब चीज़ें होती हैं जब, तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज होता है, या किसी कंपनी के साथ हम अमालगमेट होते हैं। अमालगमेट होना मतलब किसी कंपनी के साथ मिल जाना, किसी कंपनी के साथ जुड़ जाना, जैसे अभी वोडाफोन और आइडिया हुए। तो अगर हम किसी कंपनी के साथ अमालगमेट होते हैं तो वैसे केस में भी हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस हो सकता है, बाईबैक हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम इट, हमारे बाईबैक के कई सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। कई सारे बेनिफिट्स होने के साथ साथ बाईबैक के कई सारे लिमिटेशंस भी हुआ करते हैं। जहाँ पे किसी चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, वहाँ पे उस चीज़ों के कुछ नुकसान भी हुआ करते हैं, जो हम लोग बाद के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अच्छा।